let's start choosing renewable energy, the perfect energy it will give us a better tomorrow. My warm greetings to all our viewers. As we all know that our world is facing a great pandemic, COVID-19, which has caused all of us to stay home, stay safe. So we the staffs and students of Don Bosco High School, Pune, come up with an innovative idea of having online class assembly. So today I, Anika Sayyed, represent the student of class 9th B and we would like to present a brief presentation making everyone aware about Akshay Urja Divas. How many of us know the real meaning of Akshay Urja Divas? In my view, very few of them know the real meaning. A message to everyone today is that renewable energy is the best earth-friendly energy. So let us know in detail about Akshay Urja Divas by Sanskruti Jhende. Akshay Urja Divas is an awareness campaign about the development of renewable energy in India, celebrated on August 20 every year since 2004. The function was first organized in New Delhi in 2004 and 5, repeated in Nagpur in 2006 and Hyderabad in 2007 and Panchkula, Haryana in 2008. The main motive of Akshay Urja Divas is to make people aware that they have to think more of renewable energy, Akshay Urja, apart from traditional energy. The energy which we are getting naturally does not have any side effects on environment, and by using this energy we can use traditional energy for more long time. It is essential to develop a way to use Akshay Urja or renewable energy more efficiently, such as the energies such as biogas, solar energy or wind energy are few examples of Akshay Urja. Good morning everyone. Myself Sairaj Pradeep Laute. I am studying in standard 9B and today I am going to talk about solar energy. In our world today, where the requirement of energy is increasing day by day, it is necessary to understand that we must use such type of energy that will not cause depletion of resources nor have any adverse effect on our environment. Solar energy is such type of energy which is environmental friendly and do not have any adverse effect. Solar energy is obtained from radiant light and heat coming from the sun and further harnessed with the help of different technologies. To get rid of pollution, which is global problem in recent times, we should shift from non-renewable to renewable energy sources like solar energy. In order to replace traditional fuels like petrol and diesel, solar energy can be a best alternative. Solar energy will be available as long as sun continues to shine. So it is one of the best sustainable and renewable energy. We can trap solar energy using several methods. One of the method to do that is with the help of solar power plants. With the help of solar power plants, we can produce electricity in large amount. Not only electricity, with the help of solar energy, we can cook food with solar cooker. We can as well as heat water with solar heaters. Long-term investment in solar energy can provide us clean, green and renewable electricity for decades. Solar energy is the future of upcoming generation. In order to reduce pollution and save our environment, we all should try to use it. Remember, solar energy is today's resource for a better tomorrow. Thank you. Good morning everyone. Myself Aryan Pillai from class 9B and today I am going to share a short information about windmill. Windmill is a structure which converts wind power into rotational energy by means of vanes called sails or blades, specifically used for mill grind, but it is now extended to wind pumps and wind turbines. It is also used for purposes like grinding grain, pumping water, and generating electricity. Wind causes the blades to spin, thereby creating kinetic energy. The spun blades turn the shaft, which spins other blades which are connected to generators which generate electricity. So always remember, our focus should be on renewable energy like wind, solar energy, and biofuel. Thank you. Biogas. Biogas was invented by Jean Baptiste van Helmont and he was a chemist. Biogas is also known as gobar gas. The gas is produced by anaerobic decomposition of organic matter such as manure, municipal waste, plant material,
agricultural waste, cow, duck, swage, food waste, green waste, etc. are called as biogas. Thus, biogas is not a one gas, but instead it is a mixture of gases. Biogas is a renewable fuel produced by the breakdown of organic matter such as food scrap and animal waste. It can be used in a variety of ways, including as vehicle fuel and for heating and electricity generation. Thank you. Like money saved is money earned. Power saved is power generated. So let us see a short skit. Grandmother is making food on old mud stove and coughing due to excessive amount of smoke created from the stove. Everybody come to have your lunch. Yes, Grandma, I'm coming. All family members are having their lunch together near the stove. Meanwhile, Shoaib, the son, talks about the smoke coming out from the stove. Is not this smoke harmful for us? No, son, it is just normal smoke. It will disappear in some time. No, Dad. This gas seems to be normal, but it is harmful for our health. But son, how can this smoke cause dangerous disease like cancer? Yes, it is harmful. This gas contains harmful tonnage that can damage our lungs and increase the risk of cancer, heart disease, and other several diseases. Oh, that's really dangerous. Yes, son, I think you are right. But what is the solution for this? Microorganism is produced when organic matter such as food, animal waste is broken down by the microorganism in the absence of oxygen. Biogas is safe, secure and easy to use. But it is really hard to install biogas. Yes, your grandma is right. During our time, it was not easy to get the biogas subscription. Now, with the help of different schemes of the government, we can easily install biogas in our home. Okay, son, today only I will plant biogas for good health of our family and we will contribute in saving our environment. Family understands the importance of renewable energy and installs a biogas at their house. Oh यार, this air and noise यार so bad यार. मी concentrate नाही करू शकत. पप्पा कुठली गाडी घ्यायची आपण? 4 व्हीलर काय? हो 4 व्हीलर घ्यायची. अरे बाबा. पण कुठली घ्यावी तेच कळत नाही. कारण बाजारात पण बऱ्याच प्रकारच्या कार आलेल्या आहेत. बाबा गाडी घ्या पण सांभाळून गाडी घ्या. कारण काय माहिती का, कुणाचं पेट्रोल जास्त जातंय, कोणतं काय जातंय. 4 व्हीलर गाडी आपल्याला सगळेजण आपली फॅमिली बसली पाहिजे अशा टाईपची गाडी घ्यायची. हो तशीच गाडी घ्यायची, पण सध्याला मला असं वाटतं चांगली एखादी बघावी कार आणि कारच घ्यावी पूर्ण फॅमिलीसाठी. हो चांगली आहे ना, मस्त नाही, आहे. नाही. पण बघ बाबा, बघून जरा हो. सांभाळून घे पण. घेतलीच पाहिजे, सध्याला आपल्याला गरज आहे हा. कारची. डॅड, तुम्ही कुठली गाडी घेणार आहे? अरे आता आम्ही तीच चर्चा करतोय, कुठली गाडी घ्यावी कुठली नाही. कारण शोरूम मध्ये सुद्धा अनेक प्रकारच्या गाड्या आलेल्या आहेत. पण तुला काय वाटतं कुठली गाडी घ्यावी आपण? तू काय विचार केला का? छानपैकी गाडी कुठली आहे तुला काय वाटतं? माझ्या मते आपण एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली कार घ्यायला पाहिजे. एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली कार? अच्छा म्हणजे ती पर्यावरणपूरक ती कार, पर्यावरणपूरक जेणेकरून धूर वगैरे निघत नाही, पर्यावरणाचं संतुलन राहते. इलेक्ट्रिक कार. अच्छा ती इलेक्ट्रिक कार का? ओके ओके ओके. चांगला विचार आहे, परंतु इलेक्ट्रिकच कार का पण? बिकॉज दादाजी, पेट्रोल और डीजल कार्स एमिट कार्बन डायऑक्साइड, म्हणजेच
पेट्रोल आणि डिझेलचे कार आहे ना ते कार्बन डायऑक्साईड सोडतात. अच्छा आहे का? अच्छा, म्हणजे त्यांनी माणसाच्या जीवाला सुद्धा धोका निर्माण होऊ शकतो. बरोबर आहे, बरोबर आहे. कार्बन डायऑक्साईड सोबत ग्रीन हाऊस गॅस पण निघते. ग्रीन हाऊस गॅसमुळे आपलं ऍटमॉस्फिअर हीट होतं आणि त्याच्याने ग्लोबल वॉर्मिंग तयार होते. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचे पण भाव खूप वाढले आहेत आणि आपलं वातावरण दूषित होत चाललो आहे. पण आमोस, आपल्या एकट्याच्या CNG इलेक्ट्रिक गाडीमुळे जगात आणि लोकांमध्ये काय बदल होणार आहे? माय डिअर ग्रँडफादर, देर इज अ ग्रेट क्वाइट जर्नी. म्हणजे दादाजी, जर आपल्याला जग बदलायचं आहे तर त्याची सुरुवात आपण स्वतःपासून करूयात. होय आमोस, तू जे काही सांगितलं आता इथं ते आम्हाला तर पटलेलं आहे आणि म्हणून आपण एक चांगली इलेक्ट्रिक किंवा आपण CNG कारच घेऊया. म्हणजे पर्यावरण बदलण्यासाठी आपलाही हातभार लागेल आणि आपण आपल्यापासून सुरुवात करूया. ठीक आहे. सर बहती जाती है पवन, सूरज की चमकती तेज किरण, सर सर बहती जाती है पवन, झरझर नदियां. सुन हम सब से ये कहती है, घर घर को जब प्रकाश मिले, आंगन आंगन जब रोशनी हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा. सूरज की किरणें सिमटेंगी दिन में आसानी लाने को, रातों में उजाले भरने को. इन बड़ी बड़ी बाहों वाले पंखों से हवाएं लिपटेगी, तेरी सारी सेवा करने को. सुन हम सब से ये कहती है हो, तो सुन मानो, तो सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा. हर साल सीवेज, खेती, औद्योगिक उत्पादन, फूड इंडस्ट्री और शहरों का लाखों टन कचरा बाहर आता है. इस कचरे से ऊर्जा पैदा की जा सकती है. जी हां, बायोमास का इको फ्रेंडली इस्तेमाल है बायो एनर्जी, जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली पैदा की जा सकती है. बायो एनर्जी सस्ती है, नवीकरणीय है और साथ ही ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करती है. अक्षय ऊर्जा पर बनी ये छोटी सी कहानी. किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. सच कहा जाए तो शक्ति का पर्याय है ऊर्जा, समृद्धि का पर्याय है ऊर्जा. ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ न गंवाओ, क्योंकि जीवन का अभिप्राय है ऊर्जा. तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं भौतिकवाद के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के उपभोग में निरंतर वृद्धि हुई है. जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, गैस और पेट्रोलियम के सीमित भंडार हैं और धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों पर निगाह पड़ी. घरों से निकलता कूड़ा कचरा और फसल कटाई के बाद खेत में पड़ा व्यर्थ समझा जाने वाला बायोमास भी अपने भीतर ऊर्जा की किरणें छिपाए हुए है. कचरे का निपटान अपने आप में एक विकट समस्या है और इससे ऊर्जा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम है. कूड़े कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम, जहां एक ओर शहरी कचरे और उद्योगों से निकल रहे व्यर्थ का निपटान कर रहे हैं, वहीं ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण को
प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। फसल कटाई के उपरांत बचे फसल अवशेष को किसानों द्वारा जला देने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। व्यर्थ कहा जाने वाला पदार्थ तो जैव ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके साथ साथ धान की भूसी, मूंगफली का छिलका, गन्ने की खोई आदि आज बायो एनर्जी के महत्वपूर्ण और कारगर स्रोत के रूप में उभरकर सामने आए हैं। हमारे देश में 70% जनसंख्या गांवों में रहती है और खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी, गोबर और फसल अवशेष काम में लाए जाते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। गोबर व ऐसे अन्य पदार्थों से बायोगैस बनाकर काम लेने से ईंधन के रूप में शुद्ध गैस मिलती है। साथ ही खेतों के लिए उन्नत खाद प्राप्त होती है। बायोगैस संयंत्र निर्माण के लिए सरकार द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था इरिडा के अलावा सभी बैंक तथा अग्रणी वित्तीय संस्थाएं बायोमास विद्युत तथा खोई सह उत्पादन परियोजनाओं के वित्त पोषण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि बायोमास की शहरों और गांवों में वर्तमान स्थिति क्या है और किस तरह बायो एनर्जी का उत्पादन हो रहा है? बायोमास क्या है? जो दिन प्रतिदिन हमारा जो खेतों में और जो घरों में फैक्ट्रियों में काम होता है, उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उससे ये बायो प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। जैसे हम फसल उगाते हैं, उसके बाद जो हार्वेस्टिंग के बाद खेतों में रह जाता है, मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं, उसमें जो हम पैडी डिहस्किंग करते हैं तो राइस हस्क रह जाता है। उसके बाद ग्रानट सेल्स हो जाती हैं जो ऑयल वाले हैं, और जो शुगर मिल्स हैं उसमें बगासे हो जाता है। इसी तरह से जो घरों में जो है पशु रखते हैं लोग, तो कैटल डंग है, पोल्ट्री फार्म है, हमारी जो डिस्टिलरी है, पेपर मिल है, इसमें जो प्रोसेस में आते हैं जो बायोमास, उससे जो मेन प्रोडक्ट के बजाय कुछ वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। इसमें 3 तरह के होता है। जैसे कोयले में हमारा कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन जो ऑयल होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है। बायोमास में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इसमें एक बहुत अच्छी तरह काम करता है, जो उसको बिजली पैदा करने के लिए या उसको बायोगैस पैदा करने के लिए काम में आता है। पिछले 25-30 वर्षों में हमारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, इन जो वेस्ट जो मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक नेचर है, जो उससे बायोमिथिनेशन, जिससे बायोगैस बनाते हैं, या फिर उसको जलाकर कंबशन, जैसे कोयले का पावर प्लांट होता है, ऐसे ही बायोमास और बगास का भी जला के स्टीम बना के उससे बिजली बनाते हैं, और शुगर मिल्स में दोनों बनाते हैं, स्टीम और बिजली। उस कैटल जिसके पास 2 या 3 जानवर हैं, कैटल्स हैं, उससे वो छोटा प्लांट 2 क्यूबिक मीटर का बनाने के लिए हम लोग थोड़ा उनको मदद करते हैं, सेंट्रल सब्सिडी देते हैं। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे डिस्टिलरी हैं, उसमें 12,000 क्यूबिक मीटर, 10,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस बनाने के टेक्नोलॉजी हमारे पास इंडिजिनसली डेवलप्ड है, और उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा वेस्ट है, जिससे जो मीथेन बनती है और वो एटमॉस्फेयर को बहुत ही प्रदूषण फैलाती है, उसको अच्छी तरह से हम ट्रीट करके वेस्ट का मैनेजमेंट हो जाता है, डिस्पोजल हो जाता है, और साथ के साथ हमको ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मिल जाती है। गोबर गैस प्लांट को केंद्रित करने में कुल 35,000 रुपये का खर्च होता है, परंतु जकैडा द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम के अंतर्गत इस प्लांट को लगाने में 15% बेनिफिशियरी शेयर व छूट दी जाती है, और वह केवल 5,000 रुपये का भुगतान कर इस प्लांट को लगवा सकते हैं। वहीं इसे इस्तेमाल में लाने के लिए, गैस बनाने के लिए गांव में लोगों द्वारा रखे गए जानवरों के गोबर को बराबर मात्रा में लेकर उसे पहले पानी में डाला जाता है। तत्पश्चात इसे किसी वस्तु से हिलाते हुए यह मिश्रण गोबर गैस प्लांट में डाल दिया जाता है। इस विधि से लगभग 14 से 15 किलो गैस तैयार होती है, और इस गैस में कोई भी हानिकारक तत्व नहीं रहता। और ये जो गोबर गैस स्कीम चली है वो बहुत अच्छी है। ये स्कीम चले हुए अब 5 साल हो गए हैं, तो हमने भी इसे लगाए हुए 4 साल हो चुके हैं। पहले तो हमें 1 साल पता नहीं चला,
लेकिन अब जब पता चला है तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तो हमें जो एलपी गैस है वो भी हम भरवाते ही नहीं हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें खाली रोज़ की 1 टोकरी गोबर डालना है इसमें, और पूरे दिन का और महीने भर का आराम है इससे। मतलब ये गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते। 700 रुपया कोई आम चीज़ तो है नहीं है, क्योंकि गरीब बंदे के लिए कमाना बहुत बड़ी बात है। तो जो बात इसमें है वो किसी चीज़ में नहीं है। 5000 रुपया आपने लगाना है कुल, और बाकी ये वो जो सारा पैसा है वो गवर्नमेंट लगा रही है। तो पहले हम इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो मैंने अपने फादर इन लॉ को भेजा और ये स्कीम चलाने के लिए मैंने उनको बोल दिया। तो तब से हम ये चला रहे हैं। तो आप भी देख रहे हैं इसको कि ये कैसे चल रही है और इसका क्या फ़ायदा है। हम भी यही चाहते हैं कि हम जिन लोगों को नहीं पता है उन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। यूकेडा द्वारा पिछले 5 वर्षों से चलाई जा रही ये मुहिम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है। लकड़ी और गोबर के चूल्हों में बहुत हानिकारक धुआं निकलता है, जो गृहिणियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, परंतु गोबर गैस के प्रयोग से धुआं नहीं निकलता, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है। वहीं दूसरी ओर गोबर गैस प्लांट फसल उत्पादन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। ये खाद खेती के लिए अति उत्तम होती है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। सूरज की चमकती तेज किरण सर सर बहती जाती है पवन। सूरज की चमकती तेज किरण सर सर बहती जाती है पवन। झर झर नदियाँ सुन हम सब से ये कहती है, घर घर को जब प्रकाश मिले, आंगन आंगन जब रोशनी हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। Now I invite our very own Father Principal Ajay Muniz to speak a few words. Good morning, my dear teachers, students, parents, and my management committee. Today we will be talking about Akshay Urja Divas, and on this day I really want to thank Sir Suryakant and the students of Standard 9B for selecting this topic. And this topic is very important, and thinking about this topic and enlightening us with this topic will help us. That's why I really want to thank the students of class 9B. Dear students, today's assembly is on Akshay Urja Divas. Actually, it's an awareness campaign aimed at enlightening the people about the benefit of renewable energy resources in their lives and of our mother planet. Actually, it is an awareness for the young generation, especially the school children, as they hold the key to the future of this planet. We must have heard about this phrase, best out of waste, or converting the waste into the best. And this Akshay Urja
Urja Divas in inviting all of us to use the natural resources that are available in our mother planet, so that we may be able to understand these renewable energy resources well. When we talk about natural resources, these are the resources which are derived naturally. For example, from sunlight, wind, rain, tides, waves, biomass and thermal energy. As you can see behind me, we have solar panel, and in Don Bosco we have the solar panels where we get the energy from the sunlight. In fact, in our Don Bosco congregation, we have started something called Don Bosco Green Alliance, where we talk to the students about the natural resources that they can use. Now, when we talk about these natural resources, in today's world, there is a lot of misuse of the natural resources for the selfish motives of few individuals. Therefore, as we see, there is an imbalance in our mother planet which is affecting our earth, and very importantly, it's affecting our lives too. So, this is my wish for all of you, all the students, all the teachers, that we start using the natural resources which are available to us from our earth planet, mother planet, so that it will help us to live peacefully, to have a better life in future, because that will be the future generation for all of us. And let us pray that we as students of Don Bosco take it upon ourselves that we start using these natural resources, and in especially as we celebrate today as Akshay Urja Divas, we may make this day a great day and an important day for us and in our life. Thank you, Father Ajay Muniz. Lastly, I would like my companion to take us to the conclusion part. Now I request our very own class teacher, Sir Suryakant, to let us know more about Akshay Urja Divas. अक्षय ऊर्जा दिवस इयत्ता 9वी ब यांनी सादर केलेला हा परिपाठ खऱ्या अर्थाने अतिशय उपयोगी आणि आजच्या घडीसाठी तो गरजेचा आहे असे मला वाटते. खरं पाहायला गेलं तर जागतिक तापमान वाढीमुळे आपल्याला जे अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे, त्या अनेक घटकांवरती, अनेक गोष्टींवरती आपण उपाय करू शकतो. खरं पाहायला गेलं तर आपण निसर्गाचा योग्य पद्धतीने वापर केला, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पण योग्य पद्धतीने वापर केला तर खऱ्या अर्थाने आपण या अशा दुष्टचक्रातून सहज बाहेर पडू शकू. मागील 3 वर्षापासून डॉन बॉस्को विद्यालय हे या विषयावरती आपल्या माध्यमातून, परिपाठाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकरवे तुमच्यापर्यंत या विषयाची ओळख पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पहिल्या वर्षी पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून या शाळेने तुमच्यापर्यंत पवनचक्की किंवा पवन ऊर्जेतून आपण कशी वीज निर्मिती करू शकतो याची ओळख किंवा महत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न केला. मागील वर्षी सोलर पॅनल, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा या माध्यमातून तुम्हापर्यंत या सोलर एनर्जीची किती गरज आहे किंवा सोलर एनर्जीमधून आपण कशा पद्धतीने आपली ऊर्जेची गरज भागवू शकतो हा विषय सांगण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. तर यावर्षी त्यातीलच पुढील भाग म्हणजे बायोगॅस, या बायोगॅसच्या माध्यमातून या ठिकाणी या संस्थेने किंवा या वर्गाने तुम्हापर्यंत या अक्षय ऊर्जेमधील बायोगॅस कशा पद्धतीने आपण उपयोगात आणू शकतो आणि बायोगॅस किती सोपा, सहज आणि आपल्याला सहज साध्य होणारा आहे याचा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता या ठिकाणी मी संस्थेचे रेक्टर फादर मायकल बनसोडे, मुख्याध्यापक फादर अजित मुनीस
ॲडमिनिस्ट्रेटर फादर इव्हेंजेलो या सर्वांचे मी आभार मानेन, कारण त्यांनी या गोष्टींचा पुढाकार घेऊन या उपक्रमांना या ठिकाणी राबवून एक आदर्श निर्माण केलेला आहे. सांगायला आनंद वाटतो की मागील वर्षी याच स्वरूपाचा असाच एक प्रकल्प म्हणजे सोलर प्रकल्प आम्ही कॉलेजच्या टेरेसवरती राबवून त्या ठिकाणी उपयुक्त अशी किंवा गरजेची वीज निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तसाच एक प्रकल्प, तसाच एक उपक्रम सेकंडरी सेक्शनच्या टेरेसवरती राबवून आम्ही आणखी एक सौर ऊर्जा प्रकल्प या ठिकाणी स्थापन केलेला आहे. आणि शाळेसाठी लागणारी जी काय वीज आहे ती वीज या ठिकाणाहून घेऊन शाळेच्या विजेची गरज भागवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी संस्थेचं कौतुक केलं पाहिजे की या उपक्रमांची फक्त सादरीकरण न करता, परिपाठाच्या माध्यमातून सादरीकरण न करता त्या गोष्टींची अंमलबजावणी करून आपल्यासमोर एक हा आदर्श ठेवलेला आहे. आता आपल्याकडे एकच विनंती आहे की या परिपाठ पाहून, या परिपाठांचा आदर्श घेऊन तुम्हीही तुमच्या जीवनात ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या ठिकाणी या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून आपण पर्यावरणपूरक अशी आपली जीवनशैली बनवूया आणि आपल्या पर्यावरणाला एक वेगळं संरक्षण देऊया की जे संरक्षण तुमच्या भावी पिढीसाठी अतिशय गरजेचं आहे. आणि ही आजची गरज, काळाची गरज ओळखून आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये योग्य तो बदल घडवून या सौर ऊर्जा, बायोगॅस, पवन ऊर्जा अशा अनेक नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा या ठिकाणी उपयोग करून या परिपाठाचा खऱ्या अर्थाने जो काय परिणाम आहे तो आपण साध्य करायचा आहे. Thank you, sir. That was really helpful. Always together, never apart. Maybe in distance, but never in heart. Because of the present situation, we are not desiccated together, but we are connected through internet. I thank Rector Father Michael Bansode, Father Ajit Manas, and the weak principal for giving us the opportunity to present our class assembly on topic Akshay Urja Divas. I thank Father Evangelo for solar project of secondary section. I thank Supervisor Teacher Manjusha for her support and guidance. I thank our class teacher Sir Suryakant. I thank Teacher Ketki for editing assembly. Thanks all the students who took efforts in our assembly.